Hello, all the FM radio channels in Dubai, Abu Dhabi, and Bahrain, Qatar, Kuwait, and also in Durban, South Africa, and London, all the FM radio channels. Today is Friday. Rajat Bala is in studio present for the recording of third rap song in the Bhai series. In the Bhai series, rap song का title है मुंबई में भाई करेगा रसगुल्ला गुलाब जामुन का कारोबार। मुंबई में भाई करेगा रसगुल्ला गुलाब जामुन का कारोबार। मैं मुंबई के तमाम सारे रसगुल्ला गुलाब जामुन मिठाई वाले को बधाई दे रहा हूँ। हमारा वीडियो फॉलो कीजिए। सारे लड़कों को मैं आज खुशियाँ दे रहा हूँ। सारे एक्टर्स ऑन मुंबई हमारा वीडियो फॉलो कीजिए। आज जो रैप का रिकॉर्डिंग होने जा रहा है उसमें मस्ती कीजिए। सुनिए हमको, हमारा कंपोजिशन सुनिए, हमारा रिकॉर्डिंग सुनिए। तो आज मैं बोल रहा हूँ ये जो रिकॉर्डिंग का जो लाइन्स है, मेल कुरस है। ओ भाई, मुंबई के सुबह ऑफिस टाइम में इंसान का चलना हुआ शुरू। When a singer has this kind of lines, then the technical brilliancy of singing, the bending of the vocal bending, and the movement of the singing style, it becomes more complicated, becomes more corporate. Then you have to give a proper meaning. When this kind of line coming, oh bhai, Mumbai ke subah office time mein insan ka chalna hua shuru. When you have the office time in Mumbai, all the people are starting to go to office. So this is the coordinates of vocal coordinates of singing. This is a very complicated singing. So how this the composition is coming? 1, 2, 3, 4. Oh bhai, Mumbai ke subah office time mein इंसान का चलना हुआ शुरू। ओ भाई, मुंबई के ऑफिस टाइम में इंसान का चलना हुआ शुरू। ओ भाई, मुंबई के ऑफिस टाइम में, मुंबई के सुबह ऑफिस टाइम में इंसान का चलना हुआ शुरू। ओ भाई, मुंबई के ऑफिस टाइम में इंसान का चलना हुआ शुरू। ओ माय ब्रदर इन मुंबई इन मॉर्निंग टाइम, in morning office time, you have to start moving. Oh, my brother, in Mumbai office time, you have to start moving. So this is the very difficult style, and I have to discuss with my sound engineer for a few markings, technical markings, and pauses on the script when the software is running. When the sound engineer is giving role, then you have to be very appropriate, very accurate about the lines bending when you are going for 4 coordinates. Then the vocal in front of the microphone has to be adjusting your blow, your throwing of the sound, and the microphone needs the clarity. Microphone needs the accuracy of the sound projection. Very complicated singing, and this singing will be going to different banks in Nepal, Malaysia, Singapore for adjusting the soundtrack and placing it on internet. When it is getting sold on internet, the price will be very high, and this kind of rap is never coming. And the kind of complicated lines I have written in the rap style to design the song, it is a storytelling process, a song. Writing process is a storytelling process. When the story is moving, then you have to think about the life moving with story. Then you have to design the song, then it is melody bending. All very complicated, congested work together in one profile, which is the style of writing a song in rap style. Then it will be treated with a meaning for the mass. I always remember Baba Saigal in 1991, whatever he did, whatever Bachpana Baba Saigal did with his brilliancy. Baba Saigal is a brilliant orator. Baba Saigal is a brilliant rap artist who has all the talent to write his own song, own style, own singing. I tell Baba Saigal's talent influenced me at the time of schooling, and Baba Saigal's extra spirit gave me extra motivation to copy all the songs and sing in 1991, and it gave me bewilderment what kind of music is coming from Baba Saigal. And at the time, Super Hit Mukabala was there. In 1991, my job was to sit with my mother and see Super Hit Mukabala from 8 to 8:30, and I remember
Baba Saigal was a very beautiful presentation. So I always recall Baba Saigal's "Jane jana ruk jana tu ja tu jane jana ruk jana tu ja tere gore gore gaal tere kale kale baal why red but oh मुझको खूब बनाया समझ में आई मुझे तेरी चालो जहाँ तू कहाँ तू जहाँ मैं आगे आगे लड़की पीछे मैं हुसैना दुनिया का है बाबा हो गया है दीवाना आगे आगे लड़की पीछे मैं हुसैना दुनिया का है बाबा हो गया है दीवाना. So this is my inspiration from 1991 and I always tell that Baba Saigal's presentation gave me inspiration to write this kind of song. यहाँ पे जो लाइन्स आ रहा है कॉलेज ख़त्म करके चंदन सोचा करूँ बाप के साथ मिठाई का सौदा ही हाँ मिठाई का कॉलेज ख़त्म करके चंदन सोचा करूँ बाप के साथ मिठाई का सौदा ही धूमधाम से होगा तेरा शादी जिंदगी में क्या है जुदाई. So this is a storytelling process in the line. So this is the singing style is very complicated. College khatam karke. This is the cut one. In the entire long line, you are giving 3 cuts. Then it is bending 3 coordinates. 1, 2, 3. Very much like complicated geometry and the mathematical geometry, trigonometrical style of composition. I always follow geometrical composition where the many theorems have many different kind of dramatic triangular hexagonal style of designing. I always follow the trigonometrical composition. When I have complicated line, I break the line in terms of trigonometry. This is the first point, second point, third point. So college khatam karke 1 चंदन सोचा करो बाप के साथ मिठाई का सौदाई. कॉलेज खत्म करके 1 चंदन सोचा 2 करूं बाप के साथ मिठाई का सौदाई डा धूमधाम से होगा तेरा शादी. 1 जिंदगी में क्या है जुदाई इट इज 3 coordinates. जिंदगी में क्या है जुदाई. So this is a complicated singing. On this singing, our sound engineer Natarajan and Rudra has to think about the rhythm, and the rhythm will be metallic drums. We want metallic drums when it is traveling to South Asia. Durban, we have already sent the song to Durban. We have given all the newspapers in USA the song. They are not able to understand what kind of song it is. They are coming back to me. What is why? In USA, you are destroying USA culture. What is why? What is Mumbai? Why you are using Mumbai in a song? What kind of music is this? You wait. I said, you wait. Give me some chance to prove myself. And I will certainly prove myself. And so the next line is coming. बाप रघु मिठाई के पास आया एक बढ़िया शादी महफिल का पैगाम. बाप रघु मिठाई के पास आया एक बढ़िया शादी महफिल का पैगाम. 700 लोगों का मिठाई बनाना है तागड़ा रघु का काम. ये मिलाने में मेरे को बहुत टाइम लगा. मुंबई में मैं सबको बोल रहा हूँ कि कलकत्ता में पुराना फिल्म मीन्स 1940 से जो हिंदी फिल्म बना है उसमें छोटा बुक्स में प्रिंट हुआ था. राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, सायरा बानू, देन वादिया रहमान, देन नूतन, नारगिस, संजय दत्त का जो मदर है नारगिस, संजय दत्त का जो फादर का बहुत सारे फिल्म है, विश्वजीत. ये समस्त जो पुराने जो मुंबई का हीरोज है, देवानंद, उसका छोटा बुक्स मिलता है. 4 फिल्म का 5 गाने का टाइपिंग मिलता है. मुंबई से आता है. तो रोड साइड से मेरे को 36 छोटा बुक मिला था बहुत दिन पहले. जब मैं कुछ दूसरा स्टूडियो में काम करता था, कालीघाट क्रॉस करके मैं जाता था, जतिन दास पार्क भवानीपुर तक जाता था मेट्रो में. वहाँ पे छोटा बुक्स का दुकान था पेमेंट साइड में. वहाँ से मेरे को 36 बुक मिला था. कुछ 2000 लिया था. बोले सर आप लेके जाओ. मैं कुछ नगमा सुनाया था रफ़ी का कि रंग और नूर की बारात किसे मैं पेश करूं. दादा मैं कुछ गाना गाता हूँ, तो आप गाना गाते हो रफ़ी का है, तो ये सब लेके जाओ, 2002 लेके जाओ. 36 बुक दे दिया मेरे को हिंदी फिल्म का, सारे गाना पुराना 1940 से 1980 तक जो फिल्म हुआ है सारे बुक्स का कंपाइलेशन कलकत्ता से मेरे को मिला था 2000 में. वो चीज़ अभी भी मेरे पास है. जब मैं गाना लिखता हूँ तब मेरे को वो चीज़ कंसल्ट करना पड़ता है.
तो ये जो द स्टाइल ऑफ राइटिंग इज दिस, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एंड बाप रघु मिठाई के पास आया, एक बढ़िया शादी महफिल का पैगाम, 700 लोगों का मिठाई बनाना है, तगड़ा रघु का काम। सो दिस कटिंग प्रोसेस इज वेरी मच जियोमेट्रिकल। बाप रघु मिठाई के पास, 1, आया एक बढ़िया शादी महफिल का पैगाम, 2, 700 लोगों का मिठाई बनाना है, तगड़ा 700 लोगों का मिठाई बनाना है, तगड़ा रघु का काम, डाडा डीडी डाडा डाडा, तगड़ा रघु का काम, तगड़ा रघु का काम। So this is a fun melody, and this is a different style of rap. So we are going to the next line. हाँ, आ रहा हूँ, 5 मिनट रिकॉर्डिंग चल रहा है, अच्छा आ रहा हूँ। मेरे को स्टूडियो 2 दे दो, नहीं तो मॉनिटर रूम, आज मॉनिटर रूम आ रहा हूँ। ओ भाई शालिनी तेरा अकेलापन है, तो ये जो ओ भाई शालिनी तेरा अकेलापन है, ओ भाई शालिनी तेरा अकेलापन है, ओ भाई तू इतना स्वीट चंपू लड़की को दिया अपना दिल। मैंने वो भाई तू इतना स्वीट चंपू लड़की को दिया अपना दिल, ये जो चंपू वर्ड के वजह से कुछ लड़की को प्रोटेस्ट आया है। चंपू लड़की का मतलब है ये चंपू वर्ड बहुत ही मस्तीबाज वर्ड है। हम लोग याद कर सकते हैं, हम लोग जब सॉल्ट में जब बास्केटबॉल खेलते थे, तो हम लोग जब सॉल्ट लेक बास्केटबॉल से 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक के पहले एक रोड रेस हुआ था, कलकत्ता में एक रोड रेस हुआ था। बार्सिलोना ओलंपिक के पहले, बार्सिलोना ओलंपिक स्टार्ट होने के पहले कलकत्ता में एक रोड रेस हुआ था। जो स्पोर्ट्समैन थे सॉल्ट लेक, डिफरेंट स्टेडियम्स का फुटबॉलर्स, एक टी शर्ट दिया गया था ओलंपिक्स का दौड़ने के लिए 2 आवर्स। तो हम लोग गए थे नेताजी इंडोर स्टेडियम में एक डांस शो था। डांस के शो में जो लड़की लोग आए थे, वो जो लड़के लोग मेकअप रूम में मेकअप कर रहे थे, और हम लोग कुछ बास्केटबॉल प्लेयर्स देखने गए थे जो ये लड़के लोग क्या कर रहे थे। तो कुछ लड़के लोग हम लोग को देखने के बाद बोला, हम लोग पसीने में थे, दौड़ के आ रहे थे, रोड में दौड़ते दौड़ते आ रहे थे, वीडियो शूट हो रहा था, वैन में वीडियो शूट हो रहा था, हम लोग दौड़ते रहते, एक कौन सा लड़की डांस कर रहे हैं, हम लोग देखने गए मेकअप रूम में। लॉन्ग कॉरिडोर नेताजी इंडोर स्टेडियम में, सारे स्पोर्ट्स ऑफिस है, तो उसमें कुछ लड़के लोग हम लोग को देखे सर तुम लोग कहाँ से आ रहे हो, नहीं हम लोग सॉल्ट लेक से आ रहे हैं, तो आप लोग क्या डांस है, कह रहे हैं आप लोग तो चंपू, हमने बोला था कि आप तो बहुत चंपू मेकअप में हो, चंपू मेकअप, आपका मेकअप तो बहुत चंपू है। तो लोग तो डांसर्स लोग हंसने लगे, बोले जे हम लोग का डांस है, तो आप लोग स्टेडियम में जाकर बैठो। तो हम लोग जो लोग बास्केटबॉल फ्रेंड्स थे, बोले ये लड़के लोग तो बड़ा चंपू चीज़ है, ये लोग बहुत सुंदर डांस कर रहे हैं, कथक डांस। तो हम लोग जाके मस्ती कर, ये चंपू वर्ड में बहुत मज़ा आया। तो हम लोग बोला कि चंपू वर्ड लिखो, ओ भाई तू इतना स्वीट चंपू लड़की को दिया अपना दिल, ओ भाई तू इतना स्वीट चंपू लड़की को दिया अपना दिल। सो दिस इज़ फन। तो हम लोग ऐसे काम करें, तो हम लोग स्टूडियो के अंदर जाए, स्टूडियो में बुला रहा है, स्टूडियो से जाके फिर बात करते हैं। हैव ए नाइस डे।